Hello student, my name is Janvi Chauhan and you are in third semester 3 and today we are going to talk about principles of electronic communication. Now as you know that principle of electronic communication subject has been shared by Janvi Chauhan, that is me, and Dhaval sir. So, what you have learned till that date is this is the syllabus of Principle of Electronic Communication. You have learned Unit 1, which is Basics of Communication System, in which there are five topics. What is electromagnetic wave spectrum? What are analog signals, digital signals? What is pulse? What is impulse? What is sine wave, rectangular wave? What is communication system? The basic block diagram of communication system, in which you have learned that there is one sender, one receiver, and a channel. And in channel, when the message is traveling, the noise is added to the channel. Then what is noise? What is signal to noise ratio? Now, to avoid this noise, what can be done? So, what can be done is modulation. Modulation changes the signal according to our requirement. Now, what is this modulation? Now, if the signal is analog, then we have to perform analog modulation, and if the signal is digital, then we have to perform digital modulation. So the unit 2 is on that basis, which is analog modulation, and analog modulation includes amplitude modulation, frequency modulation, and phase modulation. This unit 2 is also taken by Dhaval sir. So Dhaval sir is teaching you right now analog modulation. Now unit 3 is unit 3 is of analog modulation and frequency modulation receivers. Now if we do modulation, that is okay, but to transmit the signal, we need a transmitter, and at the receiver side we need a receiver who can capture the signal and process and show you how signal shows. So there is a different chapter on analog modulation and frequency modulation receivers, in which you will be taught that how receivers work, what are the characteristics, what kind of receivers are there, and all. And then after you will be switched on digital modulation. Digital modulation has unit 4 and unit 5. Digital modulation is included in unit 4 and unit 5. So यूनिट 4 यूनिट 5 में आप डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, यूनिट 2 और यूनिट 3 में आप एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, और यूनिट 1 इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन. सो धवल सर ने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप पढ़ चुके हैं अब तक. Now we are going to see what is chapter 3, and chapter 3 will be taken by me. So let's start chapter 3 today. Okay, so let's see what is chapter 3 today. Chapter 3 is on AM and FM receivers. Now what is AM? That is amplitude modulation. What is FM, which is frequency modulation, and what is receiver? Receiver is an antenna which receives a signal. Now it is your semester 3 class. Let's see what is receiver. So basically what we process is radio signals. So receivers are also called radio receivers. Now what is radio receivers? This question is asked in exam specifically, that what is radio receiver. Radio receiver is an electronic device that picks up the desired signal. जो सिग्नल उसको चाहिए वही सिग्नल वो कैप्चर करता है. This is the basic characteristic of radio receiver. It rejects the unwanted signal. जो सिग्नल उसको नहीं चाहिए उसको वो रिजेक्ट करता है. फिर जो चाहिए था सिग्नल, जिस सिग्नल को उसने कैप्चर किया था, द सिग्नल विच इट हैज़ पिक्ड अप, वो उसको एम्पलीफाई करता है. इट एम्पलीफाइज द डिज़ायर्ड सिग्नल, and then
अगर ज़रूरत है तो वो उसको डी मॉड्यूलेट करता है, बिकॉज जो सिग्नल ट्रैवल होके आता है वो ऑलरेडी क्या होता है, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज़ डिफरेंट सिग्नल, जो भेजा गया है, जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, विच इज़ डिफरेंट, एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैप्चर करके रिसीवर उसको डी मॉड्यूलेट करता है। So receiver demodulates the carrier signal to get back the original modulation frequency signal. So you got the point. What is radio receiver? It picks up the desired signal, rejects the unwanted signal, amplifies the desired signal, and demodulates the carrier signal. Okay. Now what are the characteristic of a radio receiver? आप सोचो, अगर आप मार्केट में जाते हो एंड यू वांट टू बाय अ मोबाइल, तो आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी दैट आई वांट दिस मच कैमरा मोबाइल, आई वांट दिस मच कैमरा, दिस मच ऑफ स्क्रीन, दिस मच ऑफ memory in mobile, this much type of प्रोसेसर इन द मोबाइल. सो द सेम वे रेडियो रिसीवर की भी एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है और एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती हैं. सो व्हाट आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? These characteristics are listed here: sensitivity, selectivity, fidelity and image frequency rejection. ये चारों इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है. ये चारों कैरेक्टरिस्टिक एग्ज़ाम में एक एक मार्क में पूछी जाती है. तो आपको ये लर्न करना है और याद करना है. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी गई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज़ the ability of receiver to detect the weakest possible signal. ओके, ये क्या है? तो ये रिसीवर की एक एबिलिटी है. क्या एबिलिटी है? कि द वीकेस्ट पॉसिबल सिग्नल इट कैन डिटेक्ट. जो सबसे वीक सिग्नल है उसको वो डिटेक्ट कर सके, उसको सेंसिटिविटी बोली जाती है. तो अगर एक रेडियो रिसीवर है वो 1 वोल्ट का सिग्नल डिटेक्ट कर सकता है और दूसरा रेडियो रिसीवर है वो 10 वोल्ट का सिग्नल डिटेक्ट कर सकता है, तो दोनों में से कौन सा रिसीवर ऐसा है जो कम वोल्टेज डिटेक्ट करता है, विच इज़ 1 वोल्ट वाला. तो 1 वोल्ट वाला रेडियो रिसीवर इज़ मोर सेंसिटिव देन 10 वोल्ट जो डिटेक्ट करता है मिनिमम, वो रेडियो रिसीवर. समझे? तो दिस इज़ द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो वोल्ट्स और sensitivity can be expressed in decibels. So it depends on the gain of intermediate frequency amplifier. Now what is this intermediate frequency amplifier? ये आगे एक टॉपिक है सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर्स, उसमें आएगा. ठीक है? तो what is sensitivity? I repeat, it is the ability of receiver to detect the weakest possible signal, and it is expressed in microvolts or decibels. Now what is selectivity? Selectivity is a measure of the performance of a radio receiver to respond only to the radio signal it is tuned to and reject the other signals. इसका मतलब है कि ये एक मेजरमेंट है किसका? तो रेडियो रिसीवर का. तो ये क्या मेजर करता है? तो अगर रेडियो सिग्नल जो डिज़ायर्ड रेडियो सिग्नल है उसी को वो रिस्पॉन्ड करेगा और जो बाकी के फ्रीक्वेंसी आएंगे उसको वो रिजेक्ट करेगा, तो ये उसकी सिलेक्टिविटी हुई. अब समझो, आपके मोबाइल फ़ोन में जो FM रेडियो है वो स्पेसिफिक चैनल्स पर ही गाने बजाता है, तो ये उसकी सिलेक्टिविटी हुई. मतलब कि एक रेडियो चैनल का कोई स्पेसिफिक नंबर है, तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पर वो सिग्नल वो गाना बजाएगा और चैनल बजाएगा. दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वो गाना नहीं बजाएगा और वो चैनल भी प्ले नहीं करेगा. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेडियो रिसीवर टू रिस्पॉन्ड ओनली टू द रेडियो सिग्नल इट इज़ ट्यून्ड. मतलब जो पहले से ट्यून किया गया हुआ है उसके अंदर उसी रेडियो सिग्नल को वो रिस्पॉन्ड करेगा एंड इट विल रिजेक्ट ऑल अदर सिग्नल्स. ठीक है?
and it also refers to the ability of radio receiver to select a signal of desired frequency. बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, उसमें से वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा, बाकी औरों फ्रीक्वेंसी को वो रिजेक्ट करेगा, उसको भी बोलते हैं सिलेक्टिविटी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ फिडिलिटी. Now, this fidelity is the ability of radio receiver to reproduce faithfully all the frequency components in the baseband signal. Now, what is fidelity? I repeat. Fidelity is the ability of radio receiver. ये रेडियो रिसीवर की एक एबिलिटी है. क्या? तो कि वो रिप्रोड्यूस करता है किसको? तो इट रिप्रोड्यूस फेथफुली, मतलब वो जेन्यूनली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें एरर्स नहीं आती है. इट रिप्रोड्यूस फेथफुली ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द बेसबैंड सिग्नल इज कॉल्ड द फिडिलिटी. मतलब बेसबैंड सिग्नल मतलब क्या? तो जिस सिग्नल को हमें दूर से भेजना है, मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसको बोलते हैं बेसबैंड सिग्नल. तो जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसके सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो रीजनरेट करता है. मतलब वहाँ से भेजे, मॉड्यूलेशन हुआ, यहाँ पे रिसीव हुए, डीमॉड्यूलेशन हुआ, और डीमॉड्यूलेशन होने के बाद इफ़ दिस all the components in baseband signal are reproduced faithfully, then उसकी fidelity better मानी जाएगी. ठीक है. Now the next is image frequency rejection. It is the fourth characteristic of a radio receiver. Now what is image frequency rejection? सबसे पहले हमें ये समझना है what is image response, or image response rejection ratio is the correct word. So image response rejection ratio is a measure of performance of a radio receiver which operates in superheterodyne principle. Now what is this superheterodyne? It is a type of radio receiver जो हम आगे पढ़ेंगे. उसमें एक प्रिंसिपल यूज़ होता है, वो है हेट्रोडाइन. What is heterodyne? Heterodyne is nothing to mixing two signals. एक सिग्नल है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इनपुट से आया. आप समझो एक सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल लोकल ऑसिलेटर, मतलब एक सिग्नल सिस्टम में जनरेट हो रहा है. सो एक बाहर से आया हुआ सिग्नल, एक सिस्टम में जनरेट हुआ सिग्नल, दोनों को मिक्स करके एक सिग्नल बना विच इज़ RF आउटपुट सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल. सो ये मिक्सिंग को बोलते हैं हेट्रोडाइन. और हेट्रोडाइन में ये हमेशा ज़रूरी होता है कि एक सिग्नल बाहर से आया, एक सिग्नल सिस्टम से जनरेट हुआ. वो सिस्टम क्या है? लोकल ऑसिलेटर. लोकल ऑसिलेटर ही उसको जनरेट करेगा, और जो आउटपुट मिलेगा वो होगा RF आउटपुट सिग्नल विच इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल. Now, if this principle is used in a receiver, that receiver is called super heterodyne receiver. Now, in a radio receiver, a local oscillator is used to heterodyne against the incoming radio frequency and generating sum and difference frequencies. जैसे मैंने आपको बताया, in radio receiver एक local oscillator यूज़ होता है जो heterodyne करता है अगेंस्ट द इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी. एक इनकमिंग फ्रीक्वेंसी आती है और एक जनरेट होता है लोकल ऑसिलेटर से. उन दोनों का आइदर वो सम करता है और डिफरेंस करता है, सो विच इज़ heterodyne. So one of this will be at the intermediate frequency and will be selected and amplified. This radio receiver is responsive to any signal at its designed IF frequency. अब IF frequency में जितनी frequencies हमने रखी है, जैसे मान लो कि हमने 80 मेगाहर्ट्ज़ से 110 मेगाहर्ट्ज़ इतनी टोटल frequencies रखी हुई है, तो ये सारी frequency को रिस्पॉन्स करेगा. और उसमें अगर कोई अनवांटेड सेम फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आ गया तो वो इसको भी रिस्पॉन्ड करेगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है 110 मेगाहर्ट्ज़. आप समझो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया हुआ है. देर आर नाउ 2 इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसीज दैट कैन जनरेट 10 मेगाहर्ट्ज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज. So the signal will broadcast at 100 मेगाहर्ट्ज़ एंड 110 मेगाहर्ट्ज़. अब क्या हुआ,
लोकल ऑसिलेटर ने 110 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट किया। अब एक 10 मेगाहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई, तो 10 मेगाहर्ट्ज़ को 100 में से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, 100 हुआ। तो वो 100 को भी जो वांटेड सिग्नल है उसको मिक्स किसके साथ करेगा, 110 के साथ मिक्स करेगा। तो हमें क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली, 210। ठीक है, तो ये सिग्नल क्या करेगा, 110 में से 10 को बात करो और 110 में 10 को ऐड करो तो हमें मिलेगा 100 एंड 120 बोथ। तो ये 100 एंड 120 दोनों को रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि दोनों अनवांटेड है। A signal broadcast at 100 megahertz, which is wanted signal, and it is mixed with 110 local oscillator. And if दोनों का सम करें, अगर दोनों का हम समेशन करें तो क्या मिला, 210 मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ 210 मेगाहर्ट्ज़, एंड द डिफरेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 मेगाहर्ट्ज़. However, a signal broadcast at 120 megahertz, the unwanted signal, and mixed with 110 megahertz local oscillator will create a sum. अब ये दोनों का sum हुआ तो क्या होगा, 230 megahertz, which is also ignored by receiver, and the difference frequency also at 10 megahertz. So the signal at 120 megahertz is called the image of wanted signal. And wanted signal कौन सा है, 100 megahertz. So the ability of the receiver to reject this image gives the image rejection ratio of the system. समझे, this is bit difficult, but once you read it in a book you will come to know exactly what is happening. Okay, so the image rejection ratio of image frequency is the ratio of intermediate frequency signal level, ratio of IF signal produced by desired input frequency to the produced by image frequency. So एक इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो IF सिग्नल जनरेट करेगा, एक इमेज फ्रीक्वेंसी है वो IF सिग्नल जनरेट करेगा. तो IF सिग्नल जनरेटेड बाय इनपुट डिवाइडेड बाय IF सिग्नल जनरेटेड बाय इमेज फ्रीक्वेंसी, ये जो हमें टर्म मिलेगा उसको बोलते हैं इमेज रिजेक्शन रेशियो, और यू कैन से इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो. Now here we complete first topic, which is characteristic of radio receivers. Now the next topic is super heterodyne receiver. This is the most important topic and this is also asked every time in GTU exams. ये रेगुलर और रेमेडियल एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम. आपको ब्लॉक डायग्राम एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ करना है, एक भी ब्लॉक आप भूलेंगे नहीं. इनपुट में होगा एंटेना, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर दिखाया गया है, जिसको नीचे उसके बाद वो एंटेना का इनपुट जाता है RF एम्पलीफायर में. RF एम्पलीफायर को ग्राउंड किया हुआ है, वो भी आपको कंपलसरी करना है, आपको भूलना नहीं है. अब RF एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो जाता है नेक्स्ट मिक्सचर में. सी द सेकेंड ब्लॉक हैज़ नेम मिक्सचर. So the output of RF amplifier is given to the mixture. Now mixture here the super heterodyne is getting done. हमने आगे देखा कि एक मिक्सचर है, उसमें एक बार से इनपुट आता है और एक लोकल ऑसिलेटर जो उसके नीचे ड्रॉ किया हुआ है, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल जनरेट करता है. इस दोनों को मिक्स करके वो देता है IF एम्पलीफायर एंड फिल्टर में. ये जो IF एम्पलीफायर एंड फिल्टर है वो उसको देता है डी मॉड्यूलेटर में. ये सारा पूरा डायग्राम रिसीवर साइड है. डी मॉड्यूलेटर सिग्नल को डी मॉड्यूलेट करता है और उसमें से ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और उसमें से ऑडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके वो ऑडियो एम्पलीफायर में देता है और ऑडियो एम्पलीफायर स्पीकर में देती है, सो दैट वी कैन लिसन टू द सॉन्ग्स इन आवर मोबाइल फ़ोन ऑन स्पीकर. ओके, सो आपके मोबाइल में भी जब आप FM रेडियो में से सिग्नल रिसीव करते हो तो ये वो सिग्नल ये सारी प्रोसेस में से पास होके आपके पास आता है और आपको सुनाई देता है. हम इस सारे ब्लॉक को वन बाय वन समझेंगे. सो पहला ब्लॉक है RF एम्पलीफायर. नाउ
what is RF amplifier? RF amplifier is it boosts the weak signal level from the antenna above the noise level. जब सिग्नल रिसीव होता है तब उसके साथ जो डिज़ायर्ड सिग्नल है वो प्लस नॉइस भी एडेड होता है. तो आर एफ एम्पलीफायर क्या करता है, जो जब सिग्नल ट्रैवल होकर आता है बाय एयर और बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीडिया, बाय एनी वायर, तो उसमें हमेशा थोड़े नॉइस ऐड हुए होते हैं और उसका खुद का पावर थोड़ा वीक हुआ होता है. तो सबसे पहले जब हमें सिग्नल रिसीव करते हैं तो उसको बूस्ट करना पड़ता है. जैसे आप कॉलेज आते हो, पढ़ते हो और फिर घर जाते हो, तो घर जाके बस में खड़े खड़े जाते हो या बैठे बैठे जाते हो या कुछ भी, थोड़ा वेट किया फिर बस मिला तो आप घर जाके थक जाते हो. सो यू आर लाइक अ वीक सिग्नल विच इज़ रिसीव्ड एट होम. सो पहले घर पे जाके क्या करना पड़ता है, घर पे जाके आइदर हाथ मुंह धोते और नहाते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं. उसके जैसे ही जब वीक सिग्नल रिसीव होता है एंटेना से तो उसको बूस्ट करना पड़ता है, उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है. एंड फिर उस सिग्नल को कहाँ पे हमें भेजना है, तो ये सिग्नल रिसीव होके जाएगा मिक्सचर में. तो नेक्स्ट पार्ट है मिक्सचर. मिक्सचर में दो इनपुट आए, जो रिसीव करके हमने एम्पलीफाई किया एक वो सिग्नल और उसमें एक दूसरा आया local oscillator. So mixture has two inputs from RF amplifier and from local oscillator. It mixes two signals. एंड ये दोनों सिग्नल को वो मिक्स करके क्या करेगा, वो नेक्स्ट भेजेगा IF एम्पलीफायर को और फिल्टर को. ये IF एम्पलीफायर और फिल्टर क्या करता है, ये IF फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज़ मॉड्यूलो सब्ट्रैक्शन ऑफ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी. ना लोकल ऑसिलेटर जो नीचे ब्लॉक है वो, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हमने एंटेना से रिसीव की है वो. तो लोकल ऑसिलेटर में से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करें और उसका जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. तो intermediate frequency amplifier, it gives the high gain to a signal from the previous stage. Then ये सिग्नल जाएगा डीमॉड्यूलेटर में. डीमॉड्यूलेटर में ये सिग्नल डीमॉड्यूलेट होगा. द आउटपुट ऑफ IF एम्पलीफायर इज फेड टू डीमॉड्यूलेटर. हियर द ऑडियो सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम IF carrier. This audio signal is passed through low pass filter to remove unwanted high frequency components, and it provides goal for automatic gain control and automatic frequency control. Now if the receiver is amplitude modulation receiver, then there will be a automatic gain control, and if the receiver is frequency modulation receiver, then there will be automatic frequency control. Now what is this automatic gain control and what automatic frequency control, या उसका टॉपिक नेक्स्ट इसी चैप्टर में आएगा, तब पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लास्ट स्टेज है ऑडियो एम्पलीफायर. Now what is audio amplifier? Audio amplifier is the output from the demodulator and which is fed to the audio amplifier, and here the audio signal is amplified. and उसके बाद हमने क्या देखा था, there is a speaker. So audio amplifier पे signal amplify होके speaker में जाएगा और speaker से we can listen to the signals. Okay, now next topic is AM detection. Here demodulators come in the picture, and this AM detection technique we'll see later on. So till then we have learned two topics. One is characteristic of radio receiver, and the second topic was super heterodyne receiver. So look at your syllabus, in which we have covered
the 3.1 characteristic of radio receiver, in which sensitivity, selectivity, fidelity, image frequency, rejection, ये सब कुछ हमने देखा. नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर. ये एग्जाम में पूछते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर. नाउ नेक्स्ट इज AM डिटेक्शन मेथड. Let's see if we can have this topic also. We can have this topic. Let's see this AM detection. What is now AM detection technique? The diode detector is the simplest and most basic form of amplitude modulation. AM signal detector, and it detects the envelope of AM signal. जब सिग्नल रिसीवर साइड रिसीव हुआ तो क्या करना होगा, उसको उसमें से कैरियर सिग्नल को हटा के हमारा जो बेसिक सिग्नल है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा. उसके लिए हमें एनवेलप डिटेक्ट करना पड़ता है, और उसकी जो मेथड है उसमें डायोड यूज़ करके जो डिटेक्टर बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायोड डिटेक्टर. सो द AM डायोड डिटेक्टर कैन बी बिल्ड जस्ट फ्रॉम अ डायोड एंड फ्यू अदर कंपोनेंट्स. सो उसकी वजह से उसका नाम पड़ा है डायोड डिटेक्टर. ये AM डायोड डिटेक्टर सिर्फ थोड़े ही कंपोनेंट से बनाते हैं. लेट्स सी द व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन. द कंपोनेंट्स क्या है, तो कंपोनेंट्स ये है. एक है ट्रांसफॉर्मर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर. वो सिग्नल को इनपुट एज एन इनपुट लेता है, फिर वो सिग्नल डिटेक्ट करता है. कौन, तो डायोड. और उसके बाद वो सिग्नल आगे एक रेजिस्टर और कैपेसिटर. सो देर आर ओनली 4 कंपोनेंट्स. वन इज़ ट्रांसफॉर्मर, डायोड, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर. इतने ही कंपोनेंट से इसका कंस्ट्रक्शन होता है. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ AM डायोड डिटेक्टर. ओके. So as the name implies, the main component within AM diode detector is semiconductor diode. There are basically two circuits. These two circuits are diode or rectifier. Here you can see there is a circuit which has diode, and the capacitor and resistor makes another circuit which is called low pass filter. Now this both components ये दोनों क्या काम करते हैं, एक तो है डायोड, वो रेक्टिफिकेशन करने का काम करता है, और कैपेसिटर और रेजिस्टर से जो दोनों को पैरेलल करके जो बनाया गया है वो है फिल्टर. ओके, लो पास फिल्टर. सो वो लो लेवल की जो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को वो पास होने देता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को वो पास नहीं होने देता. ऑडियो फ्रीक्वेंसीज जनरली लो लेवल फ्रीक्वेंसीज होती है, तो वो उसको पास होने देगा, दूसरों को पास नहीं होने देगा. सो लेट्स सी ये डायोड और रेक्टिफायर क्या करता है, लो पास फिल्टर क्या करता है. So let's read. The diode in the detector serves to that enhances one half of the received signal over the other. In many instances, Schottky diodes are used. इसमें हम कौन सा डायोड यूज़ करेंगे, Schottky diode for the form of detector. Because signal levels may be low and Schottky diodes have a much lower turn on voltage. So Schottky diode होते हैं जो लो सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं. कितने लो, तो इसमें दिया गया हुआ है 0.2 वोल्ट जैसे सिग्नल को भी वो डिटेक्ट कर सकता है. जो सिलिकॉन डायोड्स होते हैं जनरली और जर्मेनियम डायोड होते हैं वो 0.7 वोल्ट को डिटेक्ट करते हैं, पर Schottky डायोड है वो 0.2 वोल्ट तक को भी डिटेक्ट कर सकता है. सो डायोड एज अ डायोड हियर Schottky डायोड्स आर यूज्ड. What is the role of low pass filter here? The low pass filter is required to remove the high frequency elements. एंड वो किसको जाने उसमें से पास होने देता है. आगे हमें आउटपुट में चाहिए लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो नहीं पास होने देगा. इससे क्या होगा, उसके आउटपुट में हमें लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा विच इज़ डिजायर्ड. So the filter usually consists of a very simple RC network, but in some cases it can be provided simply by relying on the limited frequency response of the circuitry following the amplifier. ठीक है. So this is the AM detection technique. Your syllabus has this topic also. See here,
envelope detector using diode, topic 3.3. Now next topic is topic 3.4 which is basic FM modulators. So वो हम next lecture में पढ़ेंगे. So आज हमने 3 topics पढ़े, characteristic of radio receiver, next is super heterodyne receiver and envelope detector, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्शन मेथड इन विच स्पेसिफिक मेथड ऑफ एनवेलप डिटेक्टर. ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि ये तीनों का एक नोट्स बना दीजिए. जो चीज़ें मैंने स्लाइड में इंक्लूड की है, अगर आप ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में लिखोगे देन दैट इज़ परफेक्टली ओके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. Till then, bye, take care. Thank you for your kind attention. Bye.